Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there which you should not miss. How to study for CLAT 2022 from November or December of 2020. Now, this is a very important question for all those who are right now in their 11th class, are soon going to be in their 12th class, and right now they don't know what they should do. Some want to begin from zero, that is, they have not covered anything and they want to start now. So, in this video, I'm going to tell you everything. Please grab a cup of coffee or tea or water because I'm going to talk a little bit more in this video because really want to talk that how you should utilize your time wisely. Okay, chaliye. I'm going to take you through the timeline first. Timeline that November 2020 is gone, just few days left, right? December 2020 you will have your vacations. January है, February है, March के अंदर you will have your exams for 11th standard, right? Here you have exam for 11th standard, and in April you're going to be in 12th, right? Some of the schools also tend to have take exams for 11th early on so that they can begin the session for 12th a bit early because again board exams, right? Now in May you have, now when you are in 12th, remember your time when you were in 10th, that tension that you have to prepare for boards, that comes along, right? Now in 11th you don't really have to worry much because the exams are normal exams, there are no board exams, right? But in your 12th you have your board exams, right? So वो worry रहता है कि हम board exams के लिए appear होना है. Then school, even the school people, your school authorities, they tend to have more exams. Unit test है, weekly test है, monthly test है, ठीक है? फिर उसके बाद जो normal tests होते हैं, exams होते हैं, a lot many exams to deal with at school, right? So taking that into consideration, that 12th standard brings in some worry because we have to appear for boards. If we do not call it worry, let's call it that you have to give more time to your 12th, more time to 12th, right? Now, one thing more that you need to keep in mind is that I always say that when you're preparing for exams like that of medical exams, you want to be a doctor or an engineer, you are not studying 10 subjects. You know why? Because even if someone is studying biology, they are somewhat also, it is going to help a bit in their competitive exams also. But here your stream doesn't really, if you have taken commerce, then you are not studying for CLAT. You're not even close to studying for CLAT when you're studying for your board exams, right? फीलिंग पता चल रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि यू हैव गुड टाइम. दिसंबर है आपके पास, जनवरी है, फेब्रुवरी है, मार्च है, अप्रैल, मई है, जून तक यू शुड ट्राई एंड फिनिश योर सिलेबस. You should try and finish your syllabus. Finish your syllabus so that when you are closer, that tension, वो जो वरी आती है बोर्ड्स की, क्योंकि हमारे बोर्ड्स होंगे मार्च के अंदर, तो मार्च के अंदर जब बोर्ड्स होते हैं तो वो वरी कब आनी स्टार्ट हो जाती है? हमें अक्टूबर नवंबर में हमें फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम उससे बहुत पहले सिलेबस ख़त्म कर देंगे. वैल्यू टाइम. डू नॉट थिंक दैट हमारे पास तो अभी पूरा एक साल पड़ा है, ये साल चुटकियों में निकल जाएगा. यू वोंट इवन गेट टू नो एंड देन यू विल बी लाइक हाउ विल आई क्लियर CLAT. Guys, I have a request to make. Please watch the video which I have done, that how you should prepare for CLAT 2021 from November 2020. That is a very very useful video. If you watch that, you can pick up a lot of important points from that video also, though I'll try to cover everything in this video. But please watch that video because in that video you'll actually feel कि क्या टेंशन होती है. पता है क्या होगा? फिर मैं आपको बताती हूँ क्या होगा. अभी क्या है, आप दोनों एग्जाम्स की आपने 2022 में क्या करना है? 2022 में आपके दो एग्जाम्स हैं, एक तो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, और एक आपका क्लाट का एग्जाम है ना. अब क्या होगा अगर आप अभी से अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देंगे? इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ the way I am telling you, you will be giving both of them really nicely, scoring really good.
Otherwise, if you don't start preparing well from now onwards, you will have to choose. Either you can prepare for your boards or CLAT. That happens. That happens. That's the reality. People have to choose, candidates have to choose because they do not utilize their time wisely when they are in 11th standard. You're lucky. You're very, very lucky because you know about CLAT. You know, there are going to be students who are going to sit in CLAT 2022. They will get to know about CLAT when they are done with their exams, or maybe somewhat in January 2022 they'll get to know about CLAT. They'll fill the forms and then they'll sit for a crash course, and after that, if they're not able to clear the exam, most of them are not able to clear or get into a good institute, then they take a drop year. But आपको तो पता है ना, आपको तो पता है that you have to give CLAT. If you're watching this video, you have to appear for common law admission test. Then why not prepare? What should be your aim? हमारा एम क्या होना चाहिए? हमारा एम होना चाहिए कि मई जून तक हम सब कुछ खत्म कर दें. हमारे पास तो सिर्फ रिवीजन का टाइम होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. अब हम सिर्फ रिवीजन करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में. जनवरी में हमारे प्री बोर्ड्स हैं 2022 में. फरवरी में बोर्ड्स की प्रेप कर रहे होंगे. यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ना होगा हमें. फरवरी में न्यूज़पेपर पढ़ना भी पहाड़ लगेगा क्योंकि हमें बोर्ड्स देने हैं मार्च के अंदर. फिर आता है अप्रैल. अप्रैल के अंदर क्या क्या कर लोगे? रिवीजन. अगर अच्छी प्रेपरेशन करी होगी, बार बार इन महीनों में रिवीजन करोगे, यू कैन क्लियर इट. You can clear it. You can do everything. You can score well in boards plus in CLAT if you start preparing from now on. You should prepare from now on. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप अगले साल से जून से प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, नवंबर दिसंबर से करोगे, क्लियर नहीं होगा. बट आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं बोर्ड्स के लिए पढूं या क्लैट के लिए पढूं, मैं किस चीज के लिए पढूं. बट अभी आप दोनों में अच्छा स्कोर कर सकते हैं. Okay, what should be your aim? Let's talk about it. Make notes of this in your planner. Make notes of this, what I am talking about. Very important. Number 1, completing the syllabus before the clouds of boards are over your head. That cloud of board, when it's on your head, board exams का जब वो cloud आता है, then you are not able to think about anything else. क्या पढ़ोगे? चूज नहीं कर पाओगे कि क्लैट के लिए पढ़ूं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ूं. बट हम तो वो होने ही नहीं देंगे. हम अपना सिलेबस मई जून तक खत्म कर देंगे. Please watch the syllabus video. I've done an updated syllabus video and the previous one also. Watch both of the syllabus videos, the books wala video. It is very important to know, right? अब कंप्लीट सिलेबस का मतलब, यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना, कंप्लीट द सिलेबस. कंप्लीट सिलेबस का मतलब स्किल एक्वायर करना. आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन डिटेल अगेन एंड अगेन दैट क्लैट is not only about mugging up certain things and then giving the exam. रट्टाफिकेशन नहीं है, क्रैमिंग नहीं है. आपको कुछ स्किल्स एक्वायर करनी है, कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं, नोट्स बनाने हैं. नोट्स क्यों बनाने हैं? हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हमारे एग्जाम्स, हम देखो हमारा लिंक भी बीच में टूटता है. जनवरी में हमारे प्री बोर्ड्स, फरवरी के अंदर हम मार्च के बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट है ना. ये 3 मंथ्स कितने टेंशन वाले होते हैं जब तक एग्जाम्स नहीं खत्म होते. उसके बाद अप्रैल आता है हमारे पास, एंड मई के अंदर तो हमारा क्लैट का एग्जाम ही होता है. तो फिर हमारा 3 मंथ्स का तो गैप आता है. यहाँ पे अगर हमें क्विक रिवीजन करनी है, उसके लिए हमारे पास अच्छे खासे नोट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. मैं आपको ये फीलिंग इसलिए दे रही हूँ सो दैट यू वैल्यू मेकिंग नोट्स. एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ हर चीज़ के नोट्स बनाओ, नहीं, हमने हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाने. इफ़ यूल वॉच द सिलेबस वाला वीडियो, आई हैव टोल्ड यू किस किस के नोट्स बनाने हैं. यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगी किस किस के नोट्स बनाने हैं. तो हमारा कंप्लीट सिलेबस क्या मानेंगे? जब हमने स्किल्स एक्वायर कर ली, हमने कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर लिए, नोट्स बना लिए, और प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है, हमें स्कूल में क्या आदत पड़ी हुई है कि हमने थ्योरी पढ़ लिया तो आंसर तो हम लिख ही लेंगे, हमें पेजेस ही भरने हैं, शीट्स ही भरनी है. बट वहाँ पे
MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझा और उसकी प्रैक्टिस नहीं करी पहले से ही तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। स्किल्स कौन सी एक्वायर करनी है, रिक्वायर्ड कौन सी हैं? रीडिंग विदाउट फटीक, रीडिंग विदाउट फटीक, क्योंकि अब हमारा जो पैटर्न है वो क्या है? पैसेज, ये हमारा पैसेज, उसके बाद क्वेश्चंस, उसके बाद क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कौन से टाइप के? MCQ टाइप के क्वेश्चंस। एंड अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज हैव अ लुक ऑन CLAT 2020 एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चों को यही नहीं पता कि एग्जाम का पैटर्न कैसा सा आता है, आप किस चीज के लिए, फॉर व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग, very important to know for what are you preparing. You will say preparing for CLAT, कैसा सा होता है CLAT। सैम्पल पेपर देखो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन किया होगा। वो रीडिंग विदाउट फटीक, पढ़ना है और समझना भी आना चाहिए और क्वेश्चन आंसर करने आने चाहिए। उसके लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस लाइक अ प्रो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to solve reading comprehensions like a pro. Then understanding the basic legal language well, मैं ये बता चुकी हूँ कि जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर तो पढ़ना पड़ेगा ना करंट अफेयर्स के लिए, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो करंट अफेयर्स के लिए, वहाँ पे जब भी लीगल न्यूज़, जब भी कोई लीगल न्यूज़ पढ़ते हो और लीगल न्यूज़ में कोई लीगल टर्म यूज़ करी होती है, चेक द मीनिंग, चेक द मीनिंग, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, चेक द मीनिंग। आप ये भी कर सकते हो कि जो भी आप लीगल एप्टीट्यूड की बुक यूज़ कर रहे हो उसमें से आप टर्म्स एंड मैक्सिम्स कवर कर लो, बट ये वाला पार्ट आप मिस नहीं कर सकते। कौन से वाला पार्ट? ये वाला पार्ट जिसके अंदर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, लीगल टर्म मिलते ही उसका मतलब यू नीड टू चेक, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक लीगल लैंग्वेज वाला पार्ट हो गया। देन मेकिंग नोट्स, मेकिंग नोट्स किस किस के? करंट अफेयर्स के। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के नोट्स जो आपने बनाए होने चाहिए, राइट। वोकैबलरी, वोकैबलरी के ऊपर मैंने वीडियो करी हुई है, हाउ टू कवर वोकैबलरी फ्रॉम करंट अफेयर्स, हाउ टू कवर वोकैब फ्रॉम करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन इन मैथ्स फॉर्मूलाज, मैथ्स के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, लिस्ट क्रिएट होनी चाहिए आपकी मैथ्स के फॉर्मूलाज की, सो दैट यू कैन रिवाइज देम एवरी नाउ एंड देन। अब रीजनिंग ट्रिक्स, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग है, पजल टाइप क्वेश्चंस हैं, या आपका क्रिटिकल रीजनिंग है, अगर कोई ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने का जो कि होती हैं, वो आपने नोट करने हैं, सो दैट यू रिमेंबर, सो दैट जब एग्जाम में जाओगे तो वो आपके अंदर होगा एंड आप उसी हिसाब से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। ग्रामर के रूल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ करंट अफेयर्स ट्राई करो अपने खुद के अच्छे वाइट शीट्स पे नोट्स बनाओ, बट ग्रामर के रूल्स जो हैं, रीजनिंग ट्रिक्स जो हैं, मैथ्स फॉर्मूलाज जो हैं, ये आप बुक के अंदर भी नोट्स बना सकते हो। बनाना ज़रूरी है क्योंकि हमें क्विक रिविजन करना है। प्रैक्टिस सॉल्विंग MCQs प्लस टेकिंग टॉपिक वाइज टेस्ट ऑन वीकेंड्स। मैं आपको क्या कहती हूँ, वीकडेज पे हम न्यू टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। वीकेंड्स पे मे बी हम न्यू टॉपिक करें, बट वीकेंड्स पे वी आर गोइंग टू रिवाइज व्हाट वी डिड ऑन वीकेंड्स। रिवाइज कैसे करेंगे? पढ़ेंगे जो पढ़ा है, प्लस जो पढ़ेंगे किस में से? नोट्स में से पढ़ेंगे, प्लस टेस्ट भी लेंगे। मैं नोट्स के ऊपर क्यों ज़्यादा जोर डालती हूँ? बिकॉज एक बारी अच्छे से पढ़ा, इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट किया, तो रिवाइज क्विकली होगा अगर नोट्स हैं हमारे पास, राइट। और रिवाइज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर रिवाइज करेंगे तभी रिटेन कर पाएंगे, तभी याद होगा, तो इसीलिए नोट्स इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या बात करी कि हमने कंप्लीट सिलेबस करना है, वी हैव टू डू द अब कंप्लीट सिलेबस में मैंने बात करी कि हमें कुछ स्किल्स एक्वायर करनी है, वी हैव टू एक्वायर सर्टेन स्किल्स प्लस
कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट्स कौन से अंडरस्टैंड करने हैं, कौन से सेक्शन में? देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, ग्रामर के अगर पर्टिकुलर टॉपिक्स देखने हैं तो सिलेबस वाला वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, उसके नोट्स बनाओ, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स, हम सब डरते हैं क्रिटिकल रीजनिंग से, बट इट इज़ ईजी अगर हम अच्छे से कर लें उसको। लीगल रीजनिंग, हाउ टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल एंड अप्लाई इट टू द फैक्ट्स। मैं ये वाली अब मैंने एक बुक के ऊपर मैंने एक वीडियो करी थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि एपी भारद्वाज की जो बुक है उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, पेपर नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे लीगल रीजनिंग के। तो अगर आप वो सॉल्व करोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप एपी भारद्वाज की बुक में से सॉल्व करो अपने लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाल सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो और उसमें से पर्टिकुलरली लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो, सो दैट आपको पता चले प्रिंसिपल अप्लाई कैसे करना है फैक्ट्स पे। प्रिंसिपल इज लॉ, लॉ को सिचुएशन पे कैसे अप्लाई करना है, बहुत ही ज़रूरी है ये आपको प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट दोनों, राइट। एंड इवन जो आपको लीगल लैंग्वेज से अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि लीगल लैंग्वेज का क्या मतलब है, लीगल टर्म्स का, वो भी अगेन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में ही आ जाता है। ओके, प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन, अगेन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस चाहिए प्लस practice, right? Next is reading newspaper every day plus making notes plus revising your notes every weekend. Very important, हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, रीड करना है, उसमें से नोट्स बनाने हैं और फिर उनको रिवाइज भी करना है, राइट। टाइम टेबल, नेक्स्ट वेरी बिग क्वेश्चन, एवरीवन वांट्स दैट आई शुड गिव अ टाइम टेबल। डिस्क्लेमर, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि जो टाइम टेबल वाली वीडियो है उसमें से जो पॉइंट सूटेबल लगते हैं वो पिक करो, अप्लाई करो। प्लानर होना बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग करोगे प्लानर के अंदर, नहीं तो एक टाइम टेबल बनाया, कहीं नोटबुक में बनाया, वो नोटबुक गई, प्लानिंग भी गई। नो, हैव वन प्लानर, कुछ भी नहीं है, एक नोटबुक उठाओ, उसके ऊपर लिख दो प्लानर, बन गया प्लानर, और अंदर प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दो। वो मैंने टाइम टेबल की वीडियो में बताया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट एंड सेंड मी द पिक्चर्स सो दैट आई कैन चेक एंड टेल यू इंस्टाग्राम पे। ओके, ये जो टाइम टेबल है ये मैं आपको हिंट देने के लिए बता रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट करते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, हमारा ये इस महीने में होगा, ये इस महीने में होगा। आई एम गिविंग यू अ हिंट that is how you can do it. It is up to you how you do it, but I want that everyone should do it, right? Now November 2020, abhi se start kar do working on your reading comprehensions and grammar, working on your reading comprehensions and grammar. December में holidays हैं, December के अंदर reading comprehension भी करो, critical reasoning भी उठाओ और grammar भी, अपना जो ये main important parts हैं ये ख़त्म कर दो। देन जनवरी के अंदर लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, रीडिंग ऑल द रेलेवेंट स्टफ प्लस सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर लीगल एप्टीट्यूड सॉल्व कर लो, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, फेब के अंदर लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को ही दे दो ये महीना, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप जनवरी से तो अपने करंट अफेयर्स फॉर श्योर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट पक्का से कर दोगे, बिकॉज अगर हम 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम जनवरी 2021 से लेके मई 2022 तक की न्यूज़ अच्छे से कवर करेंगे, राइट। मार्च 2021 एग्ज़ाम, 10 डेज ऑफ हॉलीडेज। अब क्या होगा, आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे मार्च में और फिर उसके बाद हॉलीडेज होंगी, वो 10 डेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। अगर लीगल एप्टीट्यूड 2 महीने में नहीं कवर हुआ देन अप्रैल के अंदर कवर करो, बट ट्राई करो कि ये जो 10 हॉलीडेज हैं इसके अंदर ना ही सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड ख़त्म कर दो बल्कि मैथ्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन भी स्टार्ट कर दो। जून के अंदर आपकी समर वेकेशंस होंगी, समर वेकेशंस के अंदर ट्राई करो दैट वॉट एवर इज लेफ्ट यू फिनिश इट ऑफ एंड एड ऑन सिलेबस ऑफ अदर 5-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दी हम सिर्फ क्लैट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, हम AILET क्लैट की भी तैयारी
कर रहे हैं, तो आप उनका जो सिलेबस है वो भी कवर कर सकते हो, राइट। एंड इनके साथ आपने क्या लेने हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, जो आपको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वो लो, सॉल्व करो। नहीं तो क्या करना है, जो इस बुक में से सॉल्व करे उसी बुक में से ऑड या इवन क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आप को टेस्ट करना है, राइट। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड हमने जून तक सिलेबस खत्म करना है, बिकॉज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हम क्या करेंगे, बहुत सारे रिविजन, बहुत सारे टेस्ट, एंड जो हमारे वीक टॉपिक्स होंगे उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे, एनालाइज करके। गाइज वॉच द वीडियो इन विच आई हैव टॉक्ड अबाउट हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट। वॉच द वीडियो। अगर आप स्लैट और AILT की तैयारी कर रहे हो तो मैंने उसमें बात किया है, सिलेबस क्या है, वॉच दैट वीडियो, ऑल्सो गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। बट सबसे पहले सिलेबस वाला वीडियो और टाइम टेबल वाला वीडियो वॉच करो। मेक योर टाइम टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑन पेपर प्लानिंग चाहिए, ओके। लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।